الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو کوئی جلدی کر کے 2 دنوں میں مکہ چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور لوگوں سے بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں اچھی لگتی ہے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور جانیں ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تعصب اسے گناہ پر پختہ کر دیتا ہے، تو ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت بڑا بچھونا ہے۔ اور لوگوں سے بعض آدمی وہ ہیں جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہوں تو جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے، ان پر چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اترے اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ پہلی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عرب کے بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو آدمی 2 دن منا کے اندر 2 دن سے زائد ٹھہرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے تھے کہ جو 2 دن سے زیادہ اگر منا کے اندر ٹھہرے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ منا کے اندر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، گھر کو جلدی چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تمہارا باطل نظریہ ہے، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں سے لے کر گویا کہ آخر تک رب تعالیٰ نے منافقین اور بالخصوص اخنس بن شریک ثقفی، یہ بہت بڑا منافق تھا، اس کے قول کو ذکر کیا کہ یہ جب مسلمانوں کے پاس آتا، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کہتا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی ذات والا صفات پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب ہیں اور رسول ہیں۔ اب یہ زبانی طور پر اقرار کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا، لیکن اس کے دل کے اندر کیا تھا، کفر، باطن کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر یہ جو قول کر رہا ہے یہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اس نے کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اس کے دل کے اندر جو خبث چھپا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر جو خباثت، غلاظت اور رذالت اور منافقت چھپی ہوئی ہے، اس کو تم جانچ نہیں سکتے ہو۔ ہم نے جانچ لیا اور ہم نے جان لیا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، بغض ہے، یہ حقیقت کے اندر ایمان لے کر آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایسا بے غیرت انسان تھا اخنس بن شریک،
इसके कारनामे को और इसके करतूत को रब तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ्सिदा फिहा व युलिकल हर्स वन नस्ल। फरमाया कि जब ये जमीन के अंदर घूमता है, हुजूर के सामने तो आकर कहता है कि हम आपकी रिसालत पर इकरार करते हैं, आपकी रिसालत को मानते हैं, अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं, लेकिन जब वहां से पलटता है, लौटता है, तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि जमीन के अंदर वो फसाद फैलाता है, खैतियों को हलाक करता है और जानों को वो क्या कर देता है, जलाता है, हलाक करता है, मार देता है। इसके बारे में और मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि जब ये हुजूर के सामने रिसालत का इकरार करके आया, अपने ईमान का दावा करके पेश करके आया, तो जब वापस आया रास्ते के अंदर तो उसने देखा कि मुसलमानों की खेतियां क्या है, हरियाली की शक्ल इख्तियार कर गई है, वो हरी भरी है, तो उसने उन खेतियों को जला कर राख कर दिया और वहां पर कुछ गधे खड़े थे, उनके गधों के जो कोंचे थी यानी कि जो पिछलियां उनकी टांगे थी, उन टांगों को उसने क्या कर दिया, काट दिया। तो रब ताला फरमाता है कि ये तो क्या जमीन के अंदर फसाद फैलाने वाला है, ये हकीकत के अंदर ईमान लाने वाला नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फसादी है। और रब ताला इरशाद फरमाता है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत फसाद को नहीं पसंद फरमाता। मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं कि आज तकरीबन 30 से ज्यादा दिन हो चुके हैं कि आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि उस पाकिस्तान के हिस्से के अंदर निहत्ते मुसलमानों को जबा किया जा रहा है और काटा जा रहा है और उनके ऊपर स्टेट फायर किए जा रहे हैं, और करने वाले भी कौन, जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं, जो इस्लाम का दावा करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि हम अल्लाह अकबर का नारा तकबीर बुलंद करने वाले हैं, और वो कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी है, लेकिन फिर भी वो निहत्ते मुसलमानों के ऊपर क्या कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। हालांकि उन मुसलमानों का कोई भी कसूर नहीं है, उनका कोई जुर्म कोई नहीं, उनका शिकवा सिर्फ इतना है कि वो अपने हक को मांगने के लिए बाहर निकले, तो बस जब वो बाहर निकले तो बाहर निकलने की वजह से उनके ऊपर अंधाधुंध क्या कर दिया गया, फायर करके उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। मैं ये कहता हूं कि दुनिया के किसी कोने के अंदर भी चला जाए, कोई इंसान भी, अहले इस्लाम तो दूर की बात, मुसलमान तो दूर की बात, बल्कि काफिर भी जो नॉन मुस्लिम है, वो भी अगर अपने हुकूक को मांगने के लिए स्टेट के सामने आ जाए, रियासत के सामने आ जाए, ममलकत के सामने आ जाए, तो उनके ऊपर स्टेट फायर नहीं किए जाते, बिल्कुल आमने सामने उनको भूना नहीं जाता जिस तरह के पाकिस्तान की रियासत के अंदर होता है। और ये वो वाहिद रियासत है कि जो कलमे की बुनियाद पर बनी थी, और इस रियासत को बनाने के अंदर हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना एक सिर्फ इसलिए किया था कि यहां मुसलमानों की जो जानें हैं वो जुल्म की वजह से क्या हो रही हैं, खत्म हो रहे हैं, मुसलमान खात्मे का शिकार हो रहे हैं जुल्म की वजह से। लेकिन ये रियासत तो उन्होंने अलग इस नजरिए से बनाई थी कि ताकि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना किया जाए, लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे ये लीडर, हमारे ये हुक्मरान, हमारे ये अमीर, हमारे ये हाकिम, वक्त ऐसे आएंगे, हुकूमत चलाने वाले ऐसे नाअहल लोग आएंगे कि जो उनको अंधाधुंध फायर करके उनको क्या करेंगे, गोलियां चलाकर मौत के सरहाने लेकर आ जाएंगे। देखिए कि ये याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को और बिलखुसूस मुसलमान को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। लेकिन यहां पर मदद की बजाय उनको क्या है, उनकी बात सुनने की बजाय उनको क्या किया जा रहा है, जुल्मन कत्ल किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना ताक के लिए कम न थे करूबियां। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते बहुत ज्यादा थे, इंसानों की तो तख्लीक ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इसलिए की है कि वो एक दूसरे के जुल्म के अंदर हिस्सेदार ना बने, बल्कि एक दूसरे के दर्द के अंदर हिस्सेदार बने और एक दूसरे की वो पूछ करें कि तुम्हें क्या मसला है। यहां पर तो ये हाल बन चुका है कि एक दूसरे से क्या रोटी छीनी जा रही है, रोटी का तो मसला ही नहीं रहा, आजकल तो क्या है, लोगों की जिंदगी का सवाल बन चुका है
थोड़ी सी बात के ऊपर उनकी क्या है, जिंदगी को क्या है, खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर तो क्या है, अगर कोई बंदा निकल कर आ जाता है कि मेरा हक मुझे दो, तो वहां पर उसको क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि हमारे निसाब के अंदर हमें ये बात पढ़ाई जाती है, फरमाया जाता है सय्यदुल कौम खादिमुहुम औ कमा काल। हो सकता है कि ये रिवायत के अल्फाज भी हों। फरमाया कि कौम का जो सरदार आला होता है, कौम का जो अमीर और हाकिम होता है, वो उनका खादिम होता है। लेकिन हमारे इन सरदारों पर, हमारे इन हाकिमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत हो, जो हर वक्त मुसलमानों के खून के दर पे होते हैं और वो उनको क्या कर रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं। इसलिए हम सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि हक ताला इंसाफ और अदल करने पर क्या है, वो हक रखता है और वो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इनका क्या लेगा, हिसाब व किताब लेगा। और ये याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की तरफ असलिहा उसकी तरफ इशारा करके उसको डराता है, तो कल क़यामत वाले दिन इसका भी वो हिसाब किताब देगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। फरमाया कि जो बंदा किसी को जानबूझकर कत्ल करता है, तो उसकी जजा सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहन्नम है, वो इसी के अंदर रहेगा। आज कश्मीर के अंदर जिनको मारा जा रहा है, जिनको कत्ल किया जा रहा है, वो नाहक कत्ल हो रहे हैं, उनको नाहक मारा जा रहा है और जुल्मन कत्ल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कचहरी लगेगी और वो वल्लाहु अजीजुन ज़ुल्तिकाम, वो गालिब भी है और इंतकाम लेने वाला भी है। आज हमारे लीडर, आज हमारे हुक्मरान, आज हमारे अमीर ताकत के नशे के अंदर आकर अंधे हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि एक दिन मरना भी है, मरकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाना है। अगर रब ने पूछ लिया कि हमने तुम्हें कुव्वत दी थी, ताकत दी थी, शौकत और शान दी थी, सतवत दी थी, हैबत दी थी, अब ये हैबत तुमने इसको गलत इस्तेमाल क्यों किया, आज इसका हिसाब किताब दो। तो फिर इन बादशाहों के पास, इन अमीरों के पास, इन हाकिमों के पास क्या जवाब होगा। इसलिए इन हजरात से ये गुजारिश है दस्तबस्ता के एक दफा मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में सोचे। और ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी, आखिर मौत है। फिर मौत के बाद अल्लाह के सामने भी इनको होना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। फरमाया कि अब इन्हीं को देख लो, हम इन अमीरों को, इन हाकिमों को कहते हैं कि अल्लाह से डरो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म न करो, तो वो कहते हैं उनको तासुब और उनकी जो इज्जत नफ्स होती है वो उनके आड़े आ जाती है। वो इज्जत नफ्स और वो तासुब और वो जुल्म उनको गुनाह पर क्या करता है, आमादा करता है। रब ताला फरमाता फहस्बुहु जहन्नम, उनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ क्या, दोज़ख है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना, ये याद रखो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुहैब रूमी, हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिदैन, आपके वालिद हजरत यासिर, आपकी वालिदा हजरत सुमैया, इनके ईमान की क्या है, गवाही दी जा रही है। फरमाया कि इन्होंने अपनी जान का नजराना अल्लाह की रजा की खातिर क्या कर दिया, पेश कर दिया। हजरत अम्मार के मुतालिक आता है कि आपके वालिद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और आपकी वालिदा के मुतालिक आता है कि इतना दर्द के साथ मैं बयान करते हुए भी मेरा दिल क्या है, पानी पानी हो रहा है कि उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। आपकी शहादत को इस तरह बयान किया मुफस्सिरीन किराम ने कि दाईं टांग को एक दाईं तरफ के ऊंट के साथ बांधा गया और बाईं टांग को बाईं तरफ के ऊंट के साथ बांधा गया। फिर उन ऊंटों को हाँक दिया गया तो वो मुखालिफ सिमत, दायां वाला दाईं तरफ और बायां वाला बाईं तरफ क्या है, दौड़ाया गया। अब मुखालिफ सिमत जब उन ऊंटों को दौड़ाया गया तो वो हजरत सुमैया, उनके दो टुकड़े अलग 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 हो गए। और ये इस्लाम के अंदर सबसे पहली और सबसे दर्दनाक शहादत
हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा की। अब उनके बारे में रब तआला ने फरमाया कि इन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। और हजरत सुहैब रूमी के मुतालिक आता है, आप जब रूम से चले तो लोगों ने आपके रास्ते को क्या कर दिया, रोक लिया। फरमाया ऐ सुहैब, तुम रूम के अंदर आए, तुम्हारे पास माल नहीं था, तुमने यहां पर तिजारत की है, तुमने माल कमाया है, तुमने माल कमाकर अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया, अब यहां छोड़ के जा रहे हो, अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हजरत सुहैब ने यह इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे ज्यादा क्या हूं, तीर अंदाज भी हूं, और मेरे पास जब तक तीर हैं मैं तुम्हें किसी को भी क्या है अपने करीब नहीं छोड़ूंगा, सबको मार के फना कर दूंगा। हाँ, अगर एक बात तुम चाहते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना सारा माल दे सकता हूं, तुम मेरा माल ले लो और मेरा रास्ता क्या कर दो, छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ये सौदा क्या है, हमें मंजूर है, आप हमें तमाम माल दे दो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुहैब रूमी की यह तिजारत को इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रजा की खातिर उन्होंने अपनी जान भी क्या कर दी, बेच दी। उन्होंने माल दिया, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। हजरत सुहैब हुजूर की बारगाह के अंदर आते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो गया कि इन्होंने किस तरह यहां जतन करके कोशिश करके मेरे पास यहां आकर ईमान का क्या किया, इकरार किया। हुजूर फरमाते हैं कि ऐ सुहैब, तुम्हारी ये तिजारत बहुत अच्छी है, ये तिजारत तुम्हें नफा देगी। अब ये देखिए कि एक तरफ सुहैब रूमी, एक तरफ अम्मार बिन यासिर, आपके वालिदैन, इनकी शहादत कैसी, और उन्होंने ईमान का कलमा पढ़ा। अब उन्होंने ईमान का कलमा पढ़ा, उन्होंने तो ये नहीं कहा था कभी भी कि ईमान पर चलना क्या है, मुश्किल है। लेकिन आज का सादा मुसलमान वो कहता है कि ईमान और इस्लाम पर चलना क्या है, मुश्किल है। अरे भाई, तुमने इस्लाम की खातिर कुर्बानी कौन सी दी है, तुमने क्या कुर्बानी दी है? तुमने वालिदैन को क्या किया, कुर्बान किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने अपनी जायदादों को क्या किया, तिजारत के माल को क्या किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह की राह में कुर्बान किया, या अपनी औलाद को अल्लाह की राह में क्या किया, कुर्बान किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर ये दावा करना, ये दावा तो क्या सरासर गलत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया कि तुम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज मुसलमान ये चाहता है कि मैं जुबानी तौर पर कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ूं, लेकिन अपने उसूल और अपने ज़वाबित और अपने जो अफ़आल हैं, वो अफ़आल हम यूरोपियों से लें, हम अहले मगरिब से लें। तो ये याद रखियो, फरमाया कि जब तुम ईमान लेकर आते हो, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हो, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के जुमला मुक्तजियात को मानना और उस पर चलना भी तुम पर क्या हो जाता है, लाजिम हो जाता है। फिर किसी यूरोपियन के कवानीन नहीं चलेंगे, इस्लाम के कवानीन नहीं चलेंगे। फरमाया फाइन सललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, फरमाया तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें, वाज़ेह रोशन आयात कुरान की आ चुकी हैं, अब भी अगर तुम ना मानो तो जान लो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाले है, तुमसे वो अजाब, तुमसे वो हिसाब किताब जरूर भी जरूर लेकर रहेगा। फरमाया कि तुम हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र, फरमाया क्या इस बात का इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह का अजाब आए? इल्ला अन यातियहुमुल्लाह, अल्लाह का आना, यहाँ पर अल्लाह का डायरेक्ट आना मुराद नहीं, बल्कि अल्लाह का अजाब आना मुराद है। फरमाया कि अगर तुम कुरान के रोशन अहकाम पर, आयात पर अमल नहीं करोगे तो ये याद रखो कि फिर बादलों की सूरत के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा, फिर फरिश्ते आएंगे, फिर तुम्हारा काम क्या कर दिया जाएगा, तमाम कर दिया जाएगा, और अल्लाह की तरफ सारे उमूर का लौटाना है, यानी कि अल्लाह ही की तरफ सारे क्या है काम लौट कर जाएंगे, और तुम भी क्या अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाओगे। हक ताला से दुआ है कि हक ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए। आखिर